morning all of you. Welcome to my channel. Today I am going to start physics. Your first lesson is electricity. Do you know how many types of electricity? Electricity are of two parts. First, current electricity. Second, static electricity. But in your chapter, in your syllabus, you have to read only current electricity. Your first definition is electric current. What is an electric current? Flow of electric charge in a conductor at a given point in per unit time. Suppose you have a metal wire and in 1 second some number of charges are passing. It is called electric current. I is equal to Q upon T, where Q is quantity of charge, T is time. Q is always equal to N into E, where N is number of charge, E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then SI unit of electricity is ampere, SI unit of Q is coulomb, and time second. It is measured by an instrument called ammeter, and ammeter is always connected in series combination. In next topic I will explain why it is connected in series combination. Next topic is direction of current. Suppose AB is conductor, it contains positive terminal and B contains negative terminal. You know that current always moves from positive direction to negative direction, and it is also known as direction of proton. Just converse, direction of electron is just reverse of direction of proton because it has opposite sign. The direction of electron is negative terminal to positive terminal. Next topic is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल कैसे मेज़र करते हैं? हम किसी का पोटेंशियल मेज़र करने के लिए हमें जानना होता है कि उसने कितना काम किया. Then electric potential at a point is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने के लिए हमें किसी का पोटेंशियल जानने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है. सपोज हमें किसी बॉय का पोटेंशियल जानना होगा तो हम ये जानेंगे कि वो इस प्लेस से इस प्लेस जाने में कितना वर्क कर रहा है. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 2 पॉइंट के जगह केवल सिंगल पॉइंट यदि पे मेज़र करना हो तो एक पॉइंट को हम इनफाइनाइट लेट कर लेते हैं. आखिर किसी सिंगल पॉइंट पर उसने कितना वर्क किया, यानी आपको किसी सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल जानना है उस पॉइंट तक जो वर्क डन होगा तो उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम इसी पोटेंशियल को 2 पॉइंट पे मेजर करेंगे. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in a conductor is defined as amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other point. इसका मतलब जैसे ये कंडक्टर है और इसमें 2 पॉइंट है तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में जितना वर्क डन होगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. It is represented by capital letter V. V is equal to W upon Q. V is potential difference, W is work done, and Q is quantity of charge. The SI unit of V is volt, W is joule, and Q coulomb. Similarly, potential difference is measured by an instrument called voltmeter, and a voltmeter is always connected in parallel combination. Next topic is Ohm's law. What is Ohm's law?
At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end. पहले हम इसको जस्टिफाई करेंगे. सपोज इट इज ए कंडक्टर. इस कंडक्टर में सपोज करिए इट इज पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज नेगेटिव टर्मिनल, जिसमें करंट पास करेगी. तो करंट का जो अमाउंट होगा वो ही उसी पे डिपेंड करेगा इसमें होने वाला वर्क डन. यदि हम करंट को क्या कर दें, फ्लो ऑफ चार्जेस को इंक्रीज कर दें तो वर्क डन भी बढ़ेगा. इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ला क्या है, वेरीफाई. क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस बढ़ाने का मतलब जितने ज़्यादा चार्ज पास करेंगे उतने ही ज़्यादा चार्ज वर्क करेंगे. देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. पिछले क्लासेस में जब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, देन इट इज कॉल्ड R and where R is constant called resistance. Resistance का मतलब रुकावट. SI unit of R is ohm and it is represented by this symbol. अब इस ओम्स लॉ से क्या ऑब्जर्वेशन मिली, जितना ज़्यादा हम चार्ज पास कराएंगे, करंट पास कराएंगे, उतना ही ज़्यादा उस टर्मिनल्स के बीच में वर्क डन होगा. पहला ऑब्जर्वेशन. दूसरा ऑब्जर्वेशन, जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. क्योंकि जैसे जैसे करंट को हम इंक्रीज करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज को इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस कम होगा. और इसका अपोजिट, यदि हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे. अब V और I के बीच में यदि ग्राफ ड्रा करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिखता है. ऐसा क्यों? आपने अभी पढ़ा है कि V और I के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है. जितना ज़्यादा V को बढ़ाएंगे यानी वर्क बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस भी मूव करेंगे, या जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस होगा उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा. तो जब दोनों को, एक को बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ता है तो उनके बीच की जो लाइन होती है तो ठीक उनके बीच से सेंटर से पास करेगी. यानी ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो ये लाइन 45 डिग्री के एंगल से पास करेगी और ये स्ट्रेट होगी. नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, लेंथ ऑफ वायर. किसी वायर की यदि हम लेंथ को इंक्रीज करें, डिक्रीज करें तो आखिर रेजिस्टेंस से उससे क्या इफेक्ट होता है, वह ऐसे एक एग्जांपल से हम आपको क्लियर करते हैं. सपोज करिए आप यहाँ से वाराणसी जा रहे हैं और यहीं से आप दिल्ली जा रहे हैं. तो आप ये बताओ कि यहाँ से वाराणसी जा रहे हैं तो आपको यदि कार चला रहे हैं तो ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, या यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो आपको उसमें आपको ज़्यादा ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस का मतलब होती है रुकावट. तो ब्रेक ज़्यादा अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे. यानी लेंथ ऑफ वायर का रेजिस्टेंस से इफेक्ट होता है. क्या होता है, दिल्ली की डिस्टेंस ज़्यादा है, वाराणसी की डिस्टेंस कम है, यानी हम लेंथ को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है. यानी एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा भी बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. तो रेजिस्टेंस को आपको बताया जा चुका है कि हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं. R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सेकेंड पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एग्जांपल आप इससे देखिए, ये स्केल, ये पेन, इन दोनों में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब इसकी थिकनेस, किसकी थिकनेस ज़्यादा है. देख रहे हैं, इसकी थिकनेस ज़्यादा दिख रही है, इसकी थिकनेस कम दिख रही है. यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है. यदि हम दोनों में करंट पास करें तो किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पतले वाले वायर में. मोटे वाले में क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो करेगी, यानी चार्जेस आसानी से फ्लो करेंगे. इसमें रेजिस्टेंस, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिया. यहाँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेस है, डिक्रीज है. तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे? यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगी? कम। जैसा बताया इसकी एरिया क्या है? कम, यानी इसमें जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी में स्पेस कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया? इंक्रीज। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दिया तो इसमें रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज बहुत आसानी से फ्लो करेंगे, यानी रेजिस्टेंस एक को बढ़ाते हैं, दूसरा क्या होता है? कम। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग के घर की जो वायरिंग होती है तो उसका वायर कॉपर का होता है। बहुत से लोग देखते हैं कि बहुत जगहों पे एल्युमिनियम वायर का भी यूज़ होता है वायरिंग, और यदि हम इसके जगह सिल्वर वायर का यूज़ करें तो उस सिल्वर वायर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल लेस होता है, बहुत कम होता है, करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। तो सिल्वर वायर का हम यूज़ इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो आप ऐसे समझिए, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया वायर कॉपर का हो सकता है, वायर सिल्वर का हो सकता है, वायर एल्युमिनियम का हो सकता है, वायर किसी भी मेटल का हो सकता है। तो जैसे जैसे नेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? इससे इफेक्ट पहुंचेगा। और फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये काइनेटिक मॉडल थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर का इंक्रीज करना, मॉलिक्यूल, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मोशन आ जाता है। तो यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कोई भी मेटल बॉडी है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें खुद से मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का भी इस रेजिस्टेंस पे क्या होता है? इफेक्ट पहुंचता है। तो आप इस दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकलेगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A, यानी L/A। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, इज इक्वल टू में चेंज होगा, हमेशा की तरह एक कांस्टेंट आएगा, रो L/A। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? इसे एक उधर भेज दे, R इंटू A अपॉन L। ये रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो गया। यानी किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जानना है तो हमें क्या क्या जानना चाहिए? उसका कितना रेजिस्टेंस है, उसमें कितनी, उसकी कितनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और उसकी कितनी लेंथ है। इस फार्मूले की हेल्प से हम उसकी रेजिस्टिविटी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? आप डायरेक्टली बता सकते हो, एसआई यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस की यूनिट आपको बताया था ओम, एरिया की एसआई यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या? मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, यहाँ से बन गया ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम बोलते हैं रो, RHO। तो रो की एसआई यूनिट हो गई क्या? ओम मीटर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस अब आप समझ चुके हैं। रेजिस्टेंस नाउन है, नाम है, और रेजिस्टिविटी उसका एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताती है। जैसे किसी भी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपके बुक्स में कुछ मेटल्स लिखे होंगे और उसके बाद उस चार्ट में उसकी रेजिस्टिविटी दिखाई होगी। जैसे सबसे ऊपर उसमें सिल्वर होगा, सिल्वर मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि उसमें करंट का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब वो रेजिस्टेंस उसका बहुत लेस है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपसे किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं। क्या इन पॉइंट्स पे आप फोकस कर लो। पहला पॉइंट है Ag, सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। आपको बताया जा चुका है कि सबसे कम रेजिस्टेंस जिस मेटल में होता है वो सिल्वर है, लेकिन वो क्या है? बेस्ट होने के बावजूद वो कम इस्तेमाल क्यों होता है? इसलिए कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार
कुछ न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और उसमें लास्ट में पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पहुंचा। तो रेजिस्टिविटी बताया कि वो एक तरह की क्या है, क्वालिटी है। क्वालिटी है तो क्वालिटी ना उस वायर के लेंथ पर डिपेंड करेगी, ना उसकी थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी। वो डिपेंड करेगी कि वो किस मटेरियल का बना है, वो सिल्वर का बना है, वो नाइक्रोम का बना है, वो किस कॉपर का बना है, वो किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करेगी, या टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर के राइज होने पे मॉलिक्यूल में काइनेटिक मॉडल थ्योरी की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो थर्ड पॉइंट, copper and aluminum wires used for transmission for electricity due to very less resistivity। कॉपर और एल्युमिनियम का वायर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाने में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ड्यू टू वेरी लेस रेजिस्टिविटी। यदि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती तो बताइए कितने ज़्यादा चार्जेस हमारा क्या हो जाता, हीट एनर्जी में ट्रांसफर होकर लॉस हो जाता है। इसलिए कॉपर और वायर का जो यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन में इसलिए करते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लेस होती है। आगे द रेजिस्टिविटी ऑफ, उसको हम सिल्वर वायर का नहीं लगा सकते, नहीं तो चोरी क्या होने लगेगी, रोड पर होना शुरू हो जाएगी। Resistivity of alloys are much more higher than pure metals। एलॉयज आप क्लास 9th में मुझे लग रहा है कि मिक्सचर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। एलॉय मेटल का कॉम्बिनेशन करके एक सब्सटेंस तैयार किया जाता है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मच मोर हायर देन प्योर मेटल, यानी एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए नाइक्रोम का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो नाइक्रोम इज कॉम्बिनेशन ऑफ, नाइक्रोम किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड निकल। तो जैसे ही हम नाइक्रोम वायर बनाते हैं, नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल से क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आप विंटर के सीजन्स में देखते हैं हीटर का यूज़ होता है। हीटर का जो वायर होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। हम पावर सप्लाई देते हैं, हम 1000 पावर 2000 उसकी पावर का हीटर यदि अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा पावर होता है, पावर वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करेंगे उतना ही चार्जेस का वर्क डन बढ़ेगा। और वर्क डन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बढ़ेगा यानी उस वायर में, उस पतले से वायर में चार्जेस का वर्क बहुत ज़्यादा हो गया और वर्क बढ़ेगा तो आप देखते हो कि वायर क्या हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। उसके अंदर से हमको उसका जो वर्क डन होता है वो हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, जिसका हम विंटर के सीजन में यूज़ करते हैं। तो ये आपने पढ़ा, नाइक्रोम इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड निकल। आप अपने बुक के चार्ट में देख लीजिएगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स में आप चेक करेंगे तो एलॉय में जाके नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी देखेंगे सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद कुछ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर है उनकी रेजिस्टिविटी और भी ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में हम इनका यूज़ नहीं करते, इसलिए हम या तो मेटल या तो एलॉयज का यूज़ करते हैं। is used for making heating elements of electric appliances। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आखिर नाइक्रोम एलॉय का यूज हम हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में क्यों करते हैं। इसका रीजन है बिकॉज ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी इट प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ हीट। यदि नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये हमको क्या करेगी, ए लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी। विंटर सीजन में हमें क्या चाहिए होती है, हीट ही चाहिए है ना। तो नाइक्रोम वायर से क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये इसकी वजह से हमको हीट क्या करती है, ज़्यादा प्रोवाइड करती है। इसी वजह से हम इसका यूज़ किस में करते हैं, हीटर्स में करते हैं। नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का कम होना, लेकिन डायरेक्टली यूज समझिए ऑक्सीडेशन करने का मतलब बर्न करना, जलाना, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जलती नहीं है। तो नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन
बर्न इजली इवन एट हाई टेम्परेचर। कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते वो वायर जलना नहीं शुरू होता, वो रेड हो जाता है, हीट प्रोवाइड करता है हमें, लेकिन बर्न करना शुरू नहीं होता। बर्न करना शुरू हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, करंट में के पाथ में क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगी और करंट की सप्लाई रुक जाएगी उसके अंदर। ड्यू टू दिस इट प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ हीट। यानी नाइट्रोम एलॉय का यूज़ हम हीटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इसलिए करते हैं कि उससे हमको क्या चाहिए होती है, ए लॉट ऑफ हीट चाहिए होती है। अब वो दो तरीके से मिलती है, उसकी हाई रेजिस्टिविटी की वजह से, और दूसरा नाइट्रोम का वायर ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी टेम्परेचर पे, इसलिए वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हीट सप्लाई देता है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो बार बार पूछा जाता है, 5th पॉइंट। और एक तो आपको रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इस पर भी आप फोकस करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।